Jai Hind doston, welcome back to Soldier Unplugged, and today we will start with our first topic of biology, that is cell structure. Before starting the topic, let's talk about what are the actual or the approximate number of cells in a human body. Human body के अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और आज हम उन्हीं सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Our topic is cell structure and the topics we will cover today is cell, cell structure, functions और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। नाउ सबसे पहले बात आती है कि सेल है क्या। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम लोग लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो अगर एक घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? दैट इज ब्रिक, यानी कि ईंट। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एनिमल सेल and we'll discuss about this in our upcoming lectures. Now let's talk about the discovery of cell. Who discovered the cell? Robert Hooke discovered the cell in 1665 in bark of a tree. That is, पेड़ की छाल में एक सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने by using a simple microscope. And at that time it appeared like a honeycomb structure, यानी कि मधुमक्खी की छत्ते की तरह वो सेल अपीयर हुआ था सिंपल माइक्रोस्कोप में। After this, the living cell was discovered in 1674 by Anton von Leeuwenhoek in pond water. पॉन्ड वाटर के अंदर यानी कि तालाब के पानी के अंदर एक प्रोटोजोन सेल को डिस्कवर किया which was a living cell by Anton von Leeuwenhoek in 1674. Now let's talk about cell theory. Cell theory was given by German scientist Schleiden and the British scientist Schwann in 1838 and 1839. Now let's talk about cell theory है क्या? सेल थ्योरी बोलती है कि all living organisms are made up of cells. As we have discussed in the initial slides as well, cell is the basic building block of all living organisms. Second point is, they are basic structural and functional unit of all living organisms. Living organisms का structure as well as function cell ही decide करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेल है क्या, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और सेल थ्योरी क्या है। Now let's talk about उसका origin क्या है। 1855 में रुडोल्फ वर्चो नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जर्मन में, दैट वाज ओमनिस सेलुला ई सेलुले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दैट इज, जो नए सेल्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स से ही आते हैं, यानी कि जो एनवायरमेंट के अंदर ऑलरेडी सेल्स हैं वो नए सेल्स को जन्म देते हैं। सो द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइजेस। सेल बहुत सारी वेरिड शेप्स और साइजेस में अवेलेबल हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, सेल्स कैन बी राउंड, ओवल, elongated, spherical, cuboidal, cylindrical, tubular, disc-like as well as irregular. Second point is, factors like its function, surface tension and rigidity of the membrane determine the shape of the cell. सेल का फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सरफेस टेंशन क्या है, रिजिडिटी क्या है, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि सेल की शेप और उसका साइज क्या होगा। Here you can see a nerve cell. This is the longest cell in our body. And here it is a smooth cell, smooth muscle cell. It is spindle shaped. So we'll discuss about all these in our upcoming sessions. Now, these are the points to be remembered. First one is, smallest cell in humans is sperm and granule cell. ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ह्यूमंस के अंदर स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म है और ग्रेन्यूल सेल है। ग्रेन्यूल सेल इज अ सेरिब्रम ब्रेन सेल। एंड देन वी हैव सेकंड पॉइंट इज, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमंस इज ओवम एंड द नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल ह्यूमंस में ओवम है जो कि फीमेल्स के अंदर है, और नर्व सेल। The smallest cell known till date is mycoplasma, which is also known as PPLO, that is pleuropneumonia-like organism. Mycoplasma का दूसरा नाम है PPLO. Mycoplasma is a kind of a bacteria जिसकी cell wall नहीं होती and it can sustain without oxygen as well. And the second point is, largest cell is an egg of an ostrich. Ostrich का जो egg है वो सबसे बड़ा cell होता है। Let's talk about types of organisms on the basis of number of cells. हमारे पास दो टाइप के organisms हैं सेल के नंबर्स के बेसिस पे। First one are the unicellular organisms, for example bacteria, and the second one are the multicellular organisms, for example humans. Now
लेट्स डिस्कस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं क्या. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं. Here you can see they are made up of only single cell and their all functions are performed by a single cell. For example, amoeba, Chlamydomonas, Paramecium and bacteria. Here you can see a visual representation of an amoeba. Okay, let's come to multicellular organisms. These are made up of more than one cell. इसलिए हम इनको multicellular organisms बोलते हैं. इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं. In these organisms, division of labor is present, and for example, humans, plants and fungi. Division of labor का मतलब क्या है? Division of labor जैसे humans के अंदर respiratory system अलग है, digestive system अलग है, excretory system अलग है, lungs air purify कर रहे हैं, stomach digestion में help कर रहा है, and all other processes, kidneys, they are excretory in nature. तो ये सब division of labor represent करता है. Now this is division of labor in cell. जैसे हमने पढ़ा कि multicellular organisms के अंदर division of labor है because वो एक से ज़्यादा cells के बने हुए हैं, वैसे ही unicellular organisms के अंदर भी division of labor है, even if they are only made up of single cell. कैसे? आइए पढ़ते हैं. Different organelles work together in a cell to perform specialized functions that help cell to survive and perform its function in the body. एक सेल के अंदर मल्टीपल सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो काम डिवाइड करती हैं, फंक्शन डिवाइड करती हैं, और एक सेल अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उससे. We'll discuss about this in our upcoming sessions. Now we have division of labor in multicellular organisms. It refers to the specialization of cells, tissues or individuals to perform specialized functions that benefit the whole organism. आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन किया है. जो सेल्स हैं, सेल्स स्पेशलाइज होके टिश्यूज बनाएंगे और टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड देन इट फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस. सेल्स कंबाइन हुए, टिश्यूज बना, टिश्यूज ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म. तो मेरे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज एन ऑर्गन सिस्टम. Now let's come to next part. Here we have structural organization of a cell. Let's talk about structural organization of a cell. First one, plasma membrane. Second is the nucleus. Third is the cytoplasm. Then we have cell organelles. We'll discuss about each one of them. Firstly, let's talk about plasma membrane. It is the outermost covering of the cell and it separates the contents of the cell from its external environment. आप लोग यहाँ पे plasma membrane की representation देख सकते हैं. Here the extrinsic protein is present, glycolipids, glycoprotein, intrinsic protein, phospholipid and cholesterol. This is a representation of a plasma membrane. Let's come to the next page. It is present in all types of cell. It is made up of lipids and proteins. It is selectively permeable membrane. Plasma membrane हर एक टाइप के सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और ये बेसिकली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है दैट इट इज नॉट परमिएबल टू ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल और सब्सटेंस. ये बहुत सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को पास होने देगी अपने में से, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है. जिनको ये अलाउ करेगी सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू पास हो सकते हैं. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. Now, it aids in transport of gases like oxygen and carbon dioxide by the process of diffusion. Plasma membrane के थ्रू हमारे अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है. ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते हैं सेल्स के फंक्शन के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सेलुलर बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट. इट इज रिलीज्ड आउट by the process of diffusion. Then it helps in water transport along the concentration gradient by the process of osmosis. We'll discuss about osmosis in our next slide. Also helps in transport of nutrients by the use of energy. यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जहाँ पे हम लोग एनर्जी यूज करके मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है. Now let's talk about what is diffusion. This is transfer of gases from high concentration to the low concentration. कहीं पे भी अगर गैस की कॉन्सेंट्रेशन उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और वो अगर अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन. तो इसका एग्जाम्पल है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड इज एक्सक्रीटेड आउट बाय सेल.
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा है, तो उसका डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड आवर बॉडी. Then the second point is cell intakes oxygen from its function. ऑक्सीजन का कंटेंट बाहर ज़्यादा है, हमारी बॉडी में कम, तो हमारी बॉडी के सेल्स डिफ्यूजन होती है सेल्स में और ऑक्सीजन का इनटेक होता है फॉर द एक्टिविटी एंड द फंक्शंस ऑफ द सेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑस्मोसिस. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. डिफ्यूजन सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए है. ऑस्मोसिस द टर्म विच इज गिवन फॉर द डिफ्यूजन फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स. व्हाट इज दिस? लेट्स टॉक अबाउट दैट. Movement of water molecules from its higher concentration to the lower concentration is termed as osmosis. इसके बारे में बात करते हैं. आप यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं. जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, these are water molecules. ये अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं और ये आपको सोल्यूट पार्टिकल्स दिख रहे हैं. ठीक है, ये आपको सोल्यूट पार्टिकल्स दिख रहे हैं और पानी अपनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है. इसमें एक हिंदी में एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं. पानी हमेशा उधर जाएगा जिधर सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हैं. दिस यू कैन राइट ऑन योर नोट्स. और इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है. हमेशा पानी की मूवमेंट वहां होगी जहां पे सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे. तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, पानी उधर जा रहा है जहां पे सोल्यूट पार्टिकल्स थे. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेज. ओके, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मीडियम. हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, तो ऑस्मोसिस के अंदर 3 काइंड्स ऑफ मीडियम आते हैं. फर्स्ट वन इज द हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? इट हैज लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू सेल्स साइटोप्लाज्म. इट हैज लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब क्या है? सेल के साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर मीडियम के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है. जब ऐसा होगा तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे hypotonic solution. Cell swells up in the hypotonic solution and hence becomes turgid. इसमें एक एग्जांपल हम लोग किशमिश यानी कि रेजिन्स का ले सकते हैं. जब आप रेजिन्स को पानी में भिगो के रखते हैं तो वो सेल अप हो जाती हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिन्स के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी और बाहर पानी है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो रेजिन्स ने पानी सोक कर लिया और वो स्वेल अप हो गई, सो वो टर्जिड हो गई. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. Let's come to next point, that is hypertonic. It is a solution with higher solute concentration as compared to cell cytoplasm. अगर सेल के बाहर मीडियम में सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा हैं, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कम, तो सेल will lose its water and it will shrink and the cell is termed as plasmolized cell. सेल अपना पानी वाटर लॉस करेगा और हम उसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर वाले मीडियम के अंदर ज़्यादा. तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि पानी हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए सेल में से पानी बाहर की तरफ जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा और हम उसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल. नाउ वी हैव आइसोटोनिक मीडियम. इट इज़ अ सॉल्यूशन विद सेम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू सेल साइटोप्लाज्म. इसके अंदर पानी की नेट मूवमेंट नहीं होती, इक्विलिब्रियम रहता है, क्योंकि जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है वही बाहर वाले मीडियम में होगा. सेल रिमेन्स ऑफ सेम साइज इन दिस मीडियम एंड हेंस टर्म्ड एज फ्लैसिड. हियर यू कैन सी द डायग्राम. प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर पानी का मूवमेंट बाहर को हुआ और ये सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई है. सेल मेम्ब्रेन गॉट श्रिंक्ड क्योंकि उसका वाटर लॉस हो गया और हमने इसको बोल दिया प्लाज्मोलाइज्ड सेल. जब आप आइसोटोनिक में जाते हैं तो वाटर की नेट मूवमेंट नहीं हो रही है. दिस इज एन इक्विलिब्रियम. जितना पानी अंदर गया उतना ही पानी बाहर आ गया और इस सेल को हम बोलते हैं फ्लैसिड. देन वी हैव एन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कंटेंट अंदर बहुत ज़्यादा है और बाहर कम, तो पानी की मूवमेंट नेट अंदर हुई और सेल बन गया टर्जिड, सेल स्वेल अप हो गया. जो मैंने आपको रेजिन का एक एग्जाम्पल दिया था यानी कि किशमिश, वो हाइपोटोनिक में आता है. ओके, so now let's talk about second point, that is nucleus. हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मैनेजर ऑफ द सेल. सेल के क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल है, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ये सब न्यूक्लियस डिसाइड करता है. डबल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स. आप डायग्राम में देख सकते हैं न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है, ये देखिए.
सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली और इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विच इज अ जेनेटिक मटेरियल. An arrangement of pores is present in the nuclear membrane that allows the transfer of certain molecules in and out of the cell. Here you can see these are the pores. These are the pores present in a nucleus. यहाँ से कुछ molecules in and out जाएंगे. ये molecules के लिए transport के लिए help करता है. Okay. It contains the genetic information that is chromosomes. इसके बारे में हम लोग discuss करते हैं कि genetic information या फिर genetic material है क्या. Chromosomes and chromatin both are DNA containing structures found in the nucleus of the cell. Chromosomes and chromatin दोनों ही DNA containing structure हैं जो हमें सेल के न्यूक्लियस में मिलते हैं. इन दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर DNA हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. क्रोमोसोम के अंदर DNA हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में है और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज क्रोमेटिन. दिस इज क्रोमेटिन. जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रोमेटिन. डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है. क्रोमेटिन के अंदर भी डीएनए है, क्रोमोसोम के अंदर भी है, बट अगर हम लोग डीएनए को एज अ थ्रेड रखें, उसको रोल ना करें और वो कंडेंस्ड फॉर्म में ना हो तो वो क्रोमेटिन है, और अगर वो कंडेंस्ड फॉर्म में है प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम. Here you can see the differentiation in both. Highly condensed structure of DNA. DNA is wound around nuclear proteins and histones, and the unwound structure of the DNA is termed as chromatin. मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटिन बोल रहे हैं. सेकेंड पॉइंट इज कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग द माइटोसिस प्रोसेस. जब सेल के अंदर माइटोसिस प्रोसेस होता है, डिविजन होती है, उस टाइम पे हमें क्रोमोसोम्स दिखेंगे. अदरवाइज एंटायर सेल साइकिल के टाइम पे डीएनए इंटरफेज में भी क्रोमेटिन की तरह ही दिखता है, बट माइटोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स हमें दिखते हैं. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो क्रोमेटिन है, इफ इट इज वाउंड अराउंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स एंड हिस्टोन्स, इट फॉर्म क्रोमोसोम. इट इज अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. Okay, so these are type of organisms on the basis of presence or absence of nucleus. सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है, उसके बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है या फिर अनडिफाइंड न्यूक्लियस है. प्रिमिटिव न्यूक्लियस से ज्यादा अच्छा टर्म है. अनडिफाइंड न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. और इसके एग्जांपल में है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा. यूकैरियोट, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस. तो जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स. और इसके एग्जांपल है ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. Now, let's discuss prokaryotes हैं क्या. Organisms whose cells lack a nucleus and other cell organelles, उनको हम बोलते हैं prokaryotes. इनका साइज कंपैरेटिवली टू यूकैरियोट्स छोटा होता है और इनके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है. They are single chromosome organisms. This is the structure of a bacteria. ये आप उसका फ्लैजिला देख सकते हैं. This is a flagella जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है. ये साइटोप्लाज्म है और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ये कैप्सूल, एंड दिस इज अ क्रोमोसोमल डीएनए. सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर. दीज आर द राइबोसोम्स एंड दिस इज प्लाज्मिड डीएनए. विल डिस्कस अबाउट दीज ऑल थिंग्स इन आवर अपकमिंग सेशंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूकैरियोट्स. Organisms whose cells contain a nucleus and other membrane bound organelles are termed as eukaryotes. इनका साइज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स लार्ज होता है. दे आर कंपैरेटिवली लार्जर इन द साइज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स एंड दे हैव मोर देन वन क्रोमोसोम. मोर देन वन क्रोमोसोम में हम लोग एक बात डिस्कस करेंगे यहाँ पे ह्यूमंस के लिए. ह्यूमंस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं.
23 pair of chromosomes, 22 autosomes and 1 pair of sex chromosomes. 22 pair of autosomes plus 1 pair of sex chromosome. So that's why we are saying more than one chromosome. ये स्ट्रक्चर आप फंजाई का देख रहे हैं साइड में. ये फंजाई का राइजोइड है. These are root-like structures. This is hypha and this is sporangium. इसके अंदर spores present होते हैं. Like these spores are germinating ones. Okay, this is a table जो आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल देगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट है. यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. दे आर सिंपल एंड स्मॉल एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 5 माइक्रोमीटर्स इन साइज होता है. और यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे माइकोप्लाज्मा का. माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर्स होता है. माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर्स. Here you can see 10 to 100 micrometer in size. यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल वाले. और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. यूनिसेलुलर में एक फंजाई का एग्जांपल आता है, दैट इज ईस्ट. ईस्ट इज अ फंजाई जो यूनिसेलुलर है. और मल्टी सेलुलर में बहुत बेसिक एग्जांपल है ह्यूमंस. हम सब लोग मल्टी सेलुलर हैं. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर लीनियर डीएनए है. Then there is a single haploid chromosome. Single chromosome is present, that is haploid. और diploid का मतलब क्या है, मैंने आपको बोला कि paired है. 23 pairs of chromosome. Okay? So total कितना हुआ? 23 pair यानी कि 46 chromosomes होते हैं humans के अंदर. Now we have membrane bound organelles absent. हमने प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है. उस तरफ यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एंड एवरीथिंग प्रेजेंट है. रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली. जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है. देन वी हैव सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन. प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाइनरी फिजन होती है. फॉर एग्जांपल एमीबा. एमीबा जो है वो डिवाइड कैसे करता है? बाइनरी फिजन से. यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके अंदर माइटोसिस प्रेजेंट होती है. विल डिस्कस अबाउट दिस. माइटोसिस क्या है ये हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन है. देन एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बैक्टीरिया एंड आर्किया सेल्स. एंड यूकैरियोटिक सेल में एग्जांपल है प्लांट एंड एनिमल सेल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. नाउ वी हैव साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है ये जानते हैं. द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट है, ये जो जितना भी फ्लूइड आप देख रहे हैं इस सारे को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं. फाइन. इट ऑल्सो कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल. These organelles are enclosed by the membranes that separates them from the cytoplasm. इन सब organelles के पास एक membrane होती है जो कि उनको separate करेगी cytoplasm से. Then we have protoplasm. Protoplasm क्या चीज़ है ये पढ़ते हैं. Cytoplasm और protoplasm they actually sound similar but they are different. Protoplasm is a term given to cytoplasm plus nucleus. Cytoplasm के अंदर सारी cell organelles भी आ रही हैं और nucleus भी. तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हम उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. अगर आप न्यूक्लियस माइनस कर देंगे तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म, बट न्यूक्लियस के ऐड होने से प्रोटोप्लाज्म बन जाता है.
तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, ये आपको हमेशा अब याद रहेगी, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. So now let's talk about cell wall. Here you can see it is a membrane that is present outside the plasma membrane and it is absent in cell animal cells. तो जो cell wall है वो plant cells के अंदर है और animal cells के अंदर नहीं है. Let me show you. Here you can see a cell. This is cell membrane which we also call as plasma membrane. और उसके बाहर एक outer covering और होती है plant cells के अंदर, जिसको हम बोलते हैं cell wall. Cell membrane is present in all type of cells, but cell wall specific cells के अंदर है, जिसका एक example होता है plant cells. As I have mentioned over here, it is absent in animal cells. Second point is it provides structural support and shape to the cells. Cells को structural support और shape cell wall ही provide करती है. Third point is it helps cells to withstand mechanical stress and osmotic pressure. यहाँ पे एक टर्म है osmotic pressure, इसको डिफाइन करते हैं. इससे पहले मैंने आपको एक हाइपोटोनिक मीडियम के बारे में बताया था. osmotic pressure का रिलेशन यहाँ पे वही है. अगर प्लांट सेल बहुत ज़्यादा पानी की कॉन्सेंट्रेशन में है, बाहर उसके पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर सोल्यूट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो पानी की मूवमेंट बाहर से अंदर होगी, यानी कि सेल टर्जिड हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा और उस सिचुएशन में सेल बर्स्ट हो सकता है. तो उस टाइम सेल को बर्स्ट होने से कौन बचाता है? सेल वॉल. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. प्लांट्स के अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर काइटिन और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन. ये तीनों पॉइंट सबको याद रखने हैं. ये एज इट इज क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे कि प्लांट्स के अंदर कौन सी सेल वॉल है, मटेरियल क्या है उसका, फंजाई के अंदर काइटिन की सेल वॉल है और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन. Now let's talk about plasmolysis. Plasmolysis is a process in which cell loses its water through osmosis, which leads to the shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. Plasmolysis हम अगर डिस्कस करें यहाँ पे, इससे पहले मैंने आपको हाइपरटोनिक मीडियम के बारे में बताया था. उसमें क्या हो रहा था? उसमें सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो रही थी और हमने बोला था कि वो प्लाज्मोलाइज स्टेट है सेल की. लेट मी शो यू विद एन एग्जाम्पल. ये एक सेल है, दिस इज अ सेल वॉल. जब हाइपरटोनिक मीडियम है बाहर, हाइपरटोनिक मीडियम का मतलब क्या है? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और मैंने आपको बोला था कि पानी हमेशा वहां जाएगा जहां पे सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हैं. तो ये सेल मेम्ब्रेन है. जब सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि वाटर का फ्लो अंदर से बाहर हो रहा है, लाइक दिस. जब सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होगी तो हमने इस स्टेट को क्या बोला था? प्लाज्मोलाइज्ड सेल. ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है, श्रिंकेज हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है कंटेंट्स की अवे फ्रॉम द सेल वॉल. सो दिस इज प्लाज्मोलाइसिस. Now let's talk about some questions. We have some practice questions over here. हमारा पहला क्वेश्चन है कि which of the cell organelle helps in cell division and controls the activity and hereditary characters of the cell. मेन फोकस यहाँ पे आप इस वर्ड पे रखेंगे, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. जब मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ा रही थी उससे पहले मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कंटेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है. तो इसका आंसर क्या है? न्यूक्लियस. सेल डिवीजन जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि न्यूक्लियस के रोल क्या है सेल डिवीजन में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट मेड ऑफ. प्लांट की सेल वॉल किस मटेरियल की बनी है? जस्ट अभी हमने पढ़ा, इट इज अ सेलुलोजिक सेल वॉल. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल. मैंने आपको जब पढ़ाया था कि वेरियस शेप और साइज के सेल होते हैं तो वहां पे हमने एक लॉन्गेस्ट सेल भी पढ़ा था. एंड व्हाट वाज दैट? न्यूरॉन्स, यानी कि नर्व सेल. ठीक है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि इसको ट्रांसमिशन करनी होती है, सिग्नल्स ट्रांसमिट करने होते हैं, इसलिए. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज
व्हाट इज सेल बायोलॉजी? हम लोग सेल पढ़ रहे हैं तो सेल बायोलॉजी एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस. Let's come to the next question. Which of the following is a functional unit of a body? सबसे बेसिक स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, सेल है क्या? It is a basic building block of all living organisms. तो फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी का क्या है? सेल. Next question is which one of the following will happen if the medium of the surrounding cell has a higher water concentration than the cell? इसका मतलब क्या है? अगर बाहर वाले मीडियम में पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो मतलब हाइपोटोनिक मीडियम है. और अगर हाइपोटोनिक मीडियम है, जस्ट अभी मैंने बोला था हाइपोटोनिक मीडियम है तो क्या होगा? सेल स्वेल अप हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, सेल विल गेन वाटर, क्योंकि पानी की मूवमेंट हमेशा वहां होगी जहां सोल्यूट ज्यादा है. तो सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा है, बाहर कम है, बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पानी बाहर से अंदर फ्लो होगा. This is cell will gain water. So this is all for today's lecture. Stay tuned for the upcoming sessions. Thank you. Jai Hind.